Honorable Chief Guest, respected faculty members, and dear students, I, Azeen Hafiz, welcome you all on behalf of Ray Channel to this debating competition. We begin the proceeding of the session with the recitation from the Holy Quran. I call upon Mr. Rizwan Sheikh for recitation. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل آمنت بالله صدق الله العظيم. हमारे साथ बतौर मेहमान मुकर्रर तशरीफ़ रखते हैं जनाब वहाद सिराज. आप नाइटेल ISP and TV नेटवर्क के चेयरमैन हैं. So it's indeed a pleasure having you. And we have with us Mr. Shakil Ahmed, who's on the mission to rescue Pakistan, who sacrificed his brilliant professional career and left Australia to Pakistan, his native land. He was abroad, but his heart was beating with the peasants of Punjab, the Haris of Sindh, the patriots of Balochistan, and the laborers of frontier. Presently, Mr. Shakil Ahmed is the director of Ray Channel and journalist in international press. Prior to this, he has successfully led ERP Union Australia, University of West Sydney as the president. He has also been in Cabinet Secretariat, Islamabad, as AD NCRDMO and GSO3 Civil Command and Control GHQ Rawalpindi. Further, he has also served as a consultant in IBM, Bank of Tokyo, and Commonwealth, Australia. Before I talk about the channel, the Ray Channel, I would like to introduce our judges. We have with us Haroon Toor, Senior Media Columnist, and Professor Arif Khattak, Director, Academics. मैं आपको बताती चलूँ कि रे चैनल एक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस नेटवर्क है. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं, and that would be by empowering the common man through motivation and awareness. We are arranging debates competitions involving universities and colleges on the subject of patriotic leadership to save Pakistan. As already mentioned, our objective is to rescue Pakistan from the depth of extreme crisis as we feel disgraced and broken. Pakistan doesn't belong to those who are bent to destroy it. Rather, it belongs to those who suffer while being there. As I mentioned earlier, we want to evolve patriotic leadership from the common man. That would be especially the youth, middle, and the educated class to save the country. Ladies and gentlemen, do you know Pakistan, like our country, is the first country ever that was established on an idea? We owe the proposal of the great men from history. Millions were martyred. Millions were martyred. We must not forget when you talk about Pakistan, we cannot dare miss those sacrifices. Millions were martyred and all sorts of tortures were suffered. Only then did this land become independent. We are that reality that stands strong with unity, faith, discipline. We have to rescue Pakistan. Do we realize that? We need to carry this in our hearts and our mind each day that we wake up, that we have to rescue Pakistan from the forces that are trying to malign this nation. Are we this weak? Can we allow ourselves to bend? Does it not hurt our ego? Does it not crush all the dreams Iqbal had for us, for this nation? Ray Channel welcomes all its distinguished guests to join hands with us in identifying that we need to rescue Pakistan. I would like to call upon my very, very dear participants.
Um, Miss Aisha Salim. Honorable teachers and respected judges, youth. Youth on which depends the future of Pakistan is of great importance. In most countries, young people are growing up without opportunities and services that they need to reach their full potential. The youth of Pakistan are also known as the nation builder. We play a significant role not only economically but also morally and practically. Pakistan youth played an important role in changing the perspective of people in the development of peace relations between India and Pakistan, which has always been bitter enemies are now on friendly terms, all because of the youth. Pakistan youth is full of capable and intelligent students, like, for example, Ali Moin Nawazish, who got 22 A's in A-levels, and Bilal Ahmed, who got 24 A's in O-levels, making a name for themselves and their countries. Students from Pakistan are now being recognized around the world. The youth of Pakistan, despite of multitude problems like unemployment, poverty, social taboos, drugs, guns, and politics, have always been in forefront. But still, movements such as freedom struggle, political changes, for example, Pakistan movement to Indo-Pak wars, and Pakistan emerging as an independent state on the world map and in becoming a first Islamic nuclear state, all because youth has played its important role. Youth of Pakistan plays its role in every field, from education to media, in bringing about change, and has always been actively participating in volunteer work when it comes to help the needy, like, for example, the flood victims, the victims of earthquake, and has also formed many organizations such as Pakistan Youth Alliance, which works to collect aids and funds and by themselves provided to the people who need them. Today's youth believe in freedom of choice, freedom of speech, and peace, and bringing about a positive change. In order for the youth to progress further, the most important step to be taken by the government in the regard is revision and the revival of the national youth policy, which must be to aspire to create situation whereby youth stands educated, employed, and free from drug abuse, frustration, sectarians, and other numerous evils. We have to prepare our youth to face the challenges of the time. Unshakable courage and youthful confidence. As the saying goes, we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Thank you. I would just request this youth to make your speech a bit comprehensive and do not take more than 4 to 5 minutes. The next contestant, we have Nimra Gul. First of all, Assalamu alaikum to my worthy professors, students, and guests. My name is Nimra, and I'm here to speak on my topic. My topic for today is what Pakistan has given to us and what we have given to Pakistan in return. When Muslims and Indians were living together, Muslims were not given proper rights. They were treated bitterly. But then, just after the partition of United India on August 14, 1947, Pakistan merged on world map. In the beginning, Pakistan was not economically fit, but as the time passes, Pakistan achieved his position. Pakistan emerged on world map. Pakistan represents as a country with bright future, potential natural resources, and committed people. Our newly born state, Pakistan, has given us respect, identity, honor, and opportunities in all the possible ways of life. Pakistan's membership of UN has achieved us a better international recognition, which is no doubt a big thing for Pakistanis. Within the several years, Pakistan and the agro-based economy, skilled and semi-skilled labor within the country and as well as outside the country, present our nations as trustworthy and considered to be a big success. No doubt, the blessings of independence are now in the hand of new generation. Now here the question arises that what we have done for Pakistan.
We are all the time ready to sacrifice ourselves for our land, Pakistan. Our well-trained, alert, and all the time ready armed forces helped us and helped the flood victims, and as well as to protect Pakistan in all worst conditions. Some of us are doctors, lawyers, and teachers, and we are making our new generation strong enough so that they can protect Pakistan in all possible ways. Guys, I am heartily attached with my land, Pakistan. And at the end, I would really like to say a few words. Like, Pakistan is my land, and I'm proud to be a Pakistani. Thank you so much. Thank you, Nimra. And we have Ms. Farisa Rana. Assalamu alaikum and good evening to all of you. My name is Farisa Rana, and today the topic given to me for the debate is how and what does the role of the youth play in the progress of Pakistan. First, I would like to give you the facts. The census of 1998 stated that the population of Pakistan, 62 million, contributed to the whole census. That's a lot. And from the 15 largest countries, in terms of population size, Pakistan by far has the largest population of youth. That means that we can actually convert this population of youth into an advantage, use this opportunity, and actually make this into a productive asset for the country. The present state of the youth is actually showing disinterest in the country. They're adopting foreign cultures, seeking foreign resources, and lacking the interest in their own country's affairs. But this is because there are inefficient supply of resources that the country offers them. They don't receive the same opportunities, and they don't receive the same benefits that other countries have to offer. But despite that fact, there's the Future Youth Group Pakistan, which actually wants to promote liberalism, democracy, and peace. And the aims that they have include promoting social and political awareness for the youth, and the education to actually reform the education system and unify it. They want to eradicate poverty and eliminate gender discrimination altogether. Pakistan and Japan were actually thinking that they can actually use the importance of youth and actually exchange the youth delegates in other countries. This way, they'll uplift their relationships with other countries. Though we all know that we live in a global village, and this global culture is making us come together in a different way. And because of that, we are very close to the world. We're just a click away. Even if we change our Facebook status today, many will be influenced. The country that we live in today is traumatized, and the country really needs fresh blood. They need bubbly enthusiasm and passionate students and youth to actually uplift the situation and help the country not fall apart. We are the ambassadors of a revolution. We are the leaders of tomorrow. If we can actually show support for Pakistan in the World Cup today, we can definitely help it all together. Thank you. Here we have our last English contestant, Sohail Bukhari. Assalamu alaikum and good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Sohail Bukhari, and today I will talk about what has Pakistan given us and what have we given to Pakistan. Now, before I continue, I need to raise a question. What is Pakistan? Is it a piece of land? Is it an ideology? Is it a group of people? Or is it identity? Now let's talk about identity. Pakistan has given us a unique and one-of-its-kind identity. In the previous century, when the world was going through a dynamic transformation, Pakistan emerged as one of the only two countries based on religion. Now, apart from that, is it a land? Yes, it is. It is a hugely rich land, which according to the Food and Agriculture Organization in 2005 reported that Pakistan is the highest producer of sugarcane, cotton, fourth, and rice and wheat, 8th and 9th respectively. Is it a mix of people? Yes, it is. Look around you. All of us are a mix of different cultures, rich in each and every way we bring together such rich experiences. Let's talk about the Pathans. The Pathans bring in richness and passion. The Punjabis, full of life. Sindhis, literature. Balochis, natural resources. Kashmiris, beauties,
while the Muhajirs provide great taste. Now, apart from that, Pakistan has given us freedom of speech, freedom of religion, freedom to do whatever and what in every aspect of life, the life that we want to live, we can do it right here in this land. Now the question arises that what have we given to Pakistan? Martin Luther King in the 60s during the civil rights movement once said that I have a dream that one day a man will not be judged by the color of his skin or by his religion, but by the depth of his character. And that is exactly what he was inspired from the independence movement of Pakistan 20 years earlier. Now, when I talk about we, it's not just the students or teachers, peasants or the elite, Punjabis or Pathans, men or women. It's all of us, from the mountains of Gilgit-Baltistan to the rivers of Karachi. Every one of us has a role to play. But if we are so good in each and everything, then why are we still called a failed nation? Why is it so? Well, because first of all, Pakistan is not a living thing. We are the ones running it. We are the ones responsible for what it is today. And I'm sure deep down inside that all of us have played that role in one way or the other. We have exploited each and everything that Pakistan has given us. Identity, the second generation overseas Pakistanis don't even like calling themselves Pakistanis. The first generation, they're just famous for being infamous. Religion, the extremists, the two extremes, conservatives as well as the liberals. We have exploited each and everything, each and every authority that was given to us. Chances of prosperity wherever we go, in any institution, we exploit that power and authority and just pull each other's legs. But what I have realized today is that it is too late to be a pessimist. It is too late because no matter how far down you go the wrong road, turn back. It is too late because we have achieved and represented Pakistan in each and every international arena. Sports, Jansher and Jahangir Khan, Asamul Haq Qureshi. Arts, Gulji, Nusrat Fateh Ali Khan, Noorjahan. Academics, the Nobel laureate, Dr. Abdul Salam, the 9-year-old girl, which was certified by Bill Gates himself. Now, it's about time that we stop pointing our finger at these people's achievements. You and I, all of us have a role to play, and we can make much better achievements because when people stand up for their rights, epic achievements occur. I would just like to end in the words of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, that democracy is in the bloods of Muslims who look upon complete equality of manhood and belief in fraternity, equality, and justice. Thank you. I have Miss Rahila Abid. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका उन्वान है हमारी बेइज्जती का बायस कौन है। जनाबे वाला, इज्जत नफ्स क्या होती है? अगर यही ना हो तो जिंदगी क्या, कैसी जिंदगी और कहाँ की जिंदगी? जनाबे वाला, हमें तो गालिबन इस लफ्ज़ के तकद्दुस का एहसास भी नहीं है। हम तो खुद फरामोशी के सर्द खानों में मुक़य्यद हैं और ज़रूरत हमें सिर्फ चंद लम्हात के लिए इन खानों से बाहर निकालती है और इब्नुल वक्त बनने के बाद हम दोबारा इन्हीं खानों में फरार इख्तियार कर लेते हैं। दरअसल हमने अपने असलाफ की इक़दार को ना अपनाया और ना ही उनकी कदर की। इसीलिए इकबाल ने कहा है, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। जनाबे वाला, हम तो जिल्लत के उन घड़ों में पड़े हैं जिनकी गंदगी ने हमारी शिनाख्त को गंवा दिया है। हम किसी और को मोरिद इल्ज़ाम क्यों ठहराएं? जनाबे वाला, गैरत बड़ी चीज़ है जहाने तगोदो में, गैरत बड़ी चीज़ है जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। जनाबे वाला, मुसलमानों के दरमियान खून का सफ़ेद होना, बाहमी रिश्तों का कमज़ोर पड़ना और बाहमी इज्जत का ना होना, ये सब इज्जत नफ्स की अदम मौजूदगी के बायस है। गैरों के आगे दस्ते ज़रूरत दराज करके हम मंगते बन गए हैं और अपनी कदर खो बैठे हैं, लेकिन अना की अकड़ हमारे अंदर से ना गई, बल्कि हम एक मुतकब्बिराना आजिज़ी का शिकार हैं।
जनाबे वाला, जिससे हमें भीख मिल जाती है और वक्त अच्छा गुजर जाता है। खुद इख्तिसाबी का अमल सिर्फ एक किताबी बात बनकर रह चुका है और अब हम दस्ते ज़रूरत भी बड़ी शान और शौकत से दराज करते हैं। हम एक मकरूज कौम हैं और हमारी नसों में खून की जगह सूद सरायत कर चुका है। हम एक मकरूज कौम है जनाबे वाला, इसलिए हमारी दुआएं बेअसर, हमारे दिल उनसियत से खाली और हमारे रिश्तों की बुनियाद सिर्फ मतलब परस्ती पर कायम है। हम तो एक ऐसे जवाल का शिकार हैं जिससे रिहाई बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इज्जत और इकराम बहुत सब अदम है, हकीकत सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी है जनाबे वाला। हम एक लटकते हुए घड़ियाल की मानिद हैं जिसकी फितरत में ठहराव नहीं है और हमारी फितरत में भी ठहराव नहीं है। हमारे वजूद रेजा रेजा, शनाख्त पारा पारा, इज्जत बिखरी हुई, किस्मत उलझी हुई, रूह परांगदा, तिश्ना तिश्ना, इस बिखरे वजूद के साथ हम हिस्सों में बटे हुए जिंदगी गुजार रहे हैं और हम बात करते हैं इज्जत नफ्स की जनाबे वाला, और कोई भी नहीं। हमारी बेइज्जती का बायस हम खुद हैं, लेकिन अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय हम इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं। क्यों जनाबे वाला, आखिर क्यों? हम खुद ही के कर्ब से वाकफियत जो नहीं रखते और तकमीले नो के कठिन रास्तों पर चलने की हम में हिम्मत जो नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ नाम के इंसान हैं। न दोस्ती न इखलास न मुरव्वत है हजूर, न दोस्ती न इखलास न मुरव्वत है हजूर। मैं तो शर्मिंदा हूं इस दौर का इंसान होकर। शुक्रिया। शुक्रिया। मिस्टर अली इफ्तिखार। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जनाब सदर, आज मेरे सामने मौजूए बहस है, क्या आज का नौजवान पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहा है। अरबाब दानिश, अगर हम अपने माजी की तरफ देखें तो हर तरफ नौजवानों की बहादुरी, शुजाअत, दलेरी और रहमदिली से भरे किस्से नजर आएंगे। चाहे हम तारीख़ इस्लाम उठा लें, तारीख़ हिंद या तारीख़ पाकिस्तान, अली इब्ने अबी तालिब, खालिद बिन वलीद, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और राशिद मिन्हास जैसे नौजवान हमारे ताबनाक माजी की रोशन दलील बनकर नजर आएंगे। ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे, ये गाजी ये तेरे पुरइसरार बंदे, जिन्हें बख्शा है तूने ज़ौक़े खुदाई। दोनीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। जनाब सदर, ये तहलका अंगेज हस्तियां तो हमारे माजी का किस्सा हैं और जिंदा दिल कौमें अपने माजी को नहीं बुलाती, मगर जनाब सदर उन जाबाज शहीदों और गाजियों के पास एक मकसद हयात था। वो बाशऊर शराफत और मतानत के पैकर थे, उनके कौलो फेल में तजाद नहीं था। उनमें नाम निहाद रोशन ख्याली, बेहयाई और जुल्मो सितम के औसाफ पे वस्त न थे। वो जांबाज मुजाहिद फर्ज शनासी के जज्बा से सरशार थे। वो हमारी तरह बेबस जिंदगी बसर नहीं करते थे, मगर उन सब का मुवाजना अगर आज के नौजवान से किया जाए तो हमारे अपने सर शर्मिंदगी से झुक जाते हैं। इकबाल ने क्या खूब फरमाया था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। अरबाब दानिश, अगर आज हम अपने अरबाब दानिश, आज का नौजवान इखलाकी पस्ती में इस कदर गिर चुका कि वहां से जुल्मात के पहाड़ भी एक लकीर से ज्यादा नजर नहीं आते। हर नई मौत खुदकुशी, लुटती इज्जतें, झूठ, सिफारिश और लबरेज होता सब्र का पैमाना हमें यह बताता है कि नौजवान की इखलाकी गिरावट जारी है। मीडिया ने हमें इस डगर पर चला दिया है जहां कौम के सर से हया की चादर सरक गई है। रोशन ख्याली ने वो डेरे डाले हैं कि हर नौजवान गंदी जुबान का आजादाना इस्तेमाल, सिगरेट, शराब नोशी, रक्सो सरूर की महफिलें सजाने को फैशन से ज्यादा कुछ समझते नहीं। हर नौजवान तबला की थाप पर बिनते हव्वा का नाच देखने को हर वक्त तैयार रहता है। बेहयाई, मुफलिसी, बर्बरियत, नफरत, बेबस जिंदगी हमारे इस अयाराना माहौल का एक हिस्सा बन चुकी है और हमारा नौजवान नदामत, मलामत, रुसवाई, नाचाकी और शर्मिंदगी की एक तस्वीर बन चुका है जिसे मकामे आदमियत और वो अपना मकसद हयात और मकामे आदमियत भूल चुका है। ऐसी हालत में जनाब सदर, नौजवान पाकिस्तान की तरक्की में कैसे अपना किरदार अदा कर सकता है। कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। अरबाब दानिश, हमें फिक्र की ज़रूरत है। हमें अपने नौजवान को ऐसा माहौल फराहम करने की ज़रूरत है कि वो अपने जज्बा हुब्बुल वतनी का सबूत दे सके।
ईमान, इत्तेहाद, तंजीम और खुदी के फलसफे को इस्तेमाल कर सके। उसे यह बताने की ज़रूरत है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ के 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। उसे खालिद बिन वलीद का वो कौल याद कराने की ज़रूरत है कि मुझे मज़ा, ये चीज़ मज़ा देगी कि मैं अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रात गुजारने की बजाय अपनी फ़ौज और अपनी तलवार लेकर मैदान दुश्मन के साथ मैदान में घुस जाऊं। जनाब सदर, आज के नौजवान की गैरत को जगाने की देर है। उसे मकसद हयात और मकाम आदमियत बताने की देर है। उसे इश्क और जुनून का फलसफा बताने की देर है। उसे सदाकत, अमानत और दयानत का सबक याद कराने की देर है। उसे बंदाए मोमिन और ख्वाबे गफलत से जगाने की देर है। तो फिर हम भी ताज उछालेंगे, गद्दारे वतन को इस देश से कर बाहर निकालेंगे। आखिर में इतना ही कहूंगा, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे वो सदियों, यहाँ से खज़ां को गुजरने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे हमेशा सर सब्ज रहे, और ऐसा सब्ज कि जिसकी कोई मसाल ना हो। खुदा करे नखम हो में सर वकारे वतन, और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीबो फन का औज कमाल, कोई मलूल ना हो, कोई खस्ता हाल ना हो। खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। शुक्रिया। थैंक यू। मिस्टर गज़्ज़फ़र अदनान। बाबा कल ईद है। बाबा मेरी चूड़ियाँ कब आएंगी? बाबा मेरा नया लिबास कब आएगा? बताते क्यों नहीं? बताइए, चूड़ियाँ और लिबास कब आएंगे? सतरंगी चूड़ियाँ जब कलाइयों में हों तो अपनों की चाहत, मोहब्बत और खलूस का एहसास दिलाती चूड़ियाँ बानों का मजबूर मुफलस बेकस बाप घर से निकलता है। चूड़ियों की सदा इसकी ऊपर ताजा ने बरसा रही है। लिबास, चूड़ियाँ लिबास के कोड़े रूह को इतना घायल कर देते हैं कि जिस्म से लहू निकलता है और ख़ुदकुशी के अक्स कदमों में डाल देता है। अली वकार फिर बानों को नया लिबास तो नहीं मिलता, मगर इसके बाबा को नया कफन ज़रूर मिल जाता है। बानों को चूड़ियाँ तो नहीं मिलती, लेकिन एक चूड़ी की तरह गले में पड़ी रस्सी ज़रूर मिल जाती है। बाहर को उभरी हुई आंखें इस ज़माने से सवाल करती हैं, इतने लोग होने के बावजूद मैं ये हराम मौत क्यों मारा गया? मुंह से लटकी हुई मुर्दा ज़बान बोलती है, क्या यहाँ मेरा अपना कोई नहीं? मुर्दा दिल की धड़कनें सदाएं देती हैं, क्या इसीलिए ये शाहराएं बनी थी कि मेरे देश की जनता सिसक कर मरे? क्या इसीलिए माली ने चमन को सींचा था कि इसकी अपनी निगाहें इसकी बहार को तरसें? क्या मिले इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसे? अली वकार जी तो चाहता था कश्मीर, फलस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, लहू लाशें, कटे फटे इंसान और खून में रंगी तारकुल की सड़कों की बात करता, मगर क़वाइद ज़ाबित के मुताबिक मेरे पास बोलने के लिए 3 से 5 मिनट में तो अपनों के लगाए हुए जख्म दिखाना मुश्किल है। मैं औरों के किस्से क्या छेड़ूं? अली वकार मेरा मौजू, हम अपनी बेइज्जती का खुद जिम्मेदार। इस ज़ेरे मौजू बहस में करारदाद ने लफ्ज़ हमारी से मेरी मुराद मैं, आप और ईवान में बैठा हर शख्स है। इस कायद, इस मुल्क, इस फर्ज़े पाक को, इस वतन पर, इस अर्ज़े पाक को इस दुनिया के नक्शे पर लाने वाला कायद जिंदगी की आखिरी सांसें गिर रहा था। गाड़ी देर से पहुंचाने वाले कौन? गिरबान में झांके तखरीबकार हम खुद हैं। सकूते ढाका वतन दो लख्त एक आशाना 2 हिस्सों में बांटने वाले कौन? गिरबान में झांके तखरीबकार हम खुद हैं। अली वकार अपनी बेइज्जती तो एक तरफ, खुदा के घर लाल मस्जिद को के दर द्वार को खून से नहलाने वाले कौन? गिरबान में झांके तखरीबकार हम खुद हैं। और अली वकार हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। अली वकार चलिए जरा देर को तसव्वुर कीजिए, कसूरवार कोई और है, जिम्मेदार कोई और है, तखरीबकार
कोई और है। तो फिर मेरा जलता हुआ नशेमन सवाल करता है, अमलाक किसने लनाब की, बरामदो दरामदात की आड़ में मुल्क को कौन लुटता रहा, परचम के तकद्दुस का पमाल किसने किया, आइन की धज्जियां उड़ाने वाले कौन। अली वकार फिर मेरा जलता हुआ नशेमन सवाल करता है, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। अली वकार कसूरवार कोई और नहीं, जिम्मेदार कोई और नहीं। जिवाकार इन तखरीबकारियों से अपनी ही बेइज्जती की दास्तानें मैं क्या रकम करूंगा। इस मौजू पर बात करना थी तो एकाश एक दावतनामा मुगीज और माज की मां को भेज दिया था जिसके बेटों को सरे बाजार जिबा कर दिया गया। एकाश एक दावतनामा हुजादे क्राम को भेज दिया था जिनकी दुआएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की बजाय पानी और बिजली की दुआएं देती रहीं। एकाश एक दावतनामा FIA के बिल्डंग में हलाक होने वाले रफीक खान की उस बेटी को भेज दिया था जो आज भी मुंतज़र है, बाबा चूड़ियां कब लाएंगे, बाबा चूड़ियां कब लाएंगे। एकाश एक दावतनामा सवात के उन मासूम बच्चों को भेज दिया था जो आज भी मलबे के ढेर तले अपनी किताबें तलाश करते हैं, अपनी कुर्सियां तलाशते हैं। मासूम बच्चे यहाँ आते नाला और शेवन बुलंद करते, मासूम बच्चे आंखों में आंसू लेकर आते, सिसकियां भरते और बताते कसूरवार कोई और नहीं, जिम्मेदार कोई और नहीं। कहाँ है अर्ज़ो समावात का मालिक के चाहतों की रगे गुरे दे, कहाँ है अर्ज़ो समावात का मालिक के चाहतों की रगे गुरे दे। अली वकार अगर आप भी इस ऐवान में मौजूद कोई शख्स ये कहता है कसूरवार कोई और है, जिम्मेदार कोई और है, तो फिर मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, कोई और तो नहीं है। पसे खंजर आजमाई हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। शुक्रिया। I would like Mr. Haroon Toor, Senior Media Columnist, and Professor Arif Khattak, Director Academics, to take their time and let us know for the decision. Before we go to the decision, sir, we would want some words from Mr. Wahad Siraj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The topic was very interesting. Patriotic leadership. And if I ask you the question that if I give you an ordinary man who is not patriotic, how would you make him or her patriotic? It is actually a very difficult answer, but I'll give you a very simple answer. You can make somebody a patriotic if you can make him or her a man or a woman of character or a man or a woman of honesty. Character is the foundation of success and also the foundation of patriotism. And what is character made of? The character is made of honesty. The character is made of integrity. The character is made of humility. The character is made of sacrifice. The character is made of justice. The character is made of simplicity. The character is made of hard work. The character is made of patience, the courage, the fairness, the brotherhood, the love, and the tolerance. The more solid we become in our character, the more solid patriot we can become. And the more solid, successful person we can become. You must have been reading a lot of books on success and management and leadership. And if you look at the lives of all the great leaders, all the prophets, and all the worldly leaders, you would find all of them the man or the woman of character. So this is the power of the character
And this was explained to us by the great leader, Allama Iqbal, and the very great kalam which he has said. Sufi ki tariqat mein faqat masti ahwal. Sufi ki tariqat mein faqat masti ahwal. मुल्ला की शरीयत में फ़कत मस्ती गुफ्तार. शायर की नवा मुर्दा वो अफसुरदा वो बेज़ौक़. अफ़कार में सरमस्त ना ख्वाबीदा ना बेदार. वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको. वो मर्द मुजाहिद नज़र आता नहीं मुझको. हो जिसके रगो पे में फ़कत मस्ती किरदार. My dear fellows, do you think that our present leaders are patriotic? And are they honest? You should say loudly, no. Yes. So why they have reached to the top? Yes. Exactly. The lady here has rightly said. They have reached to the top because of us. Because of myself and because all of us sitting here. Because as individuals and collectively as a society, we have lost our character. We have lost our integrity and our honor is compromised day in and day out. Whether it is drone attacks, or whether we are taking the begging bowls in front of the Western powers, or whether the Raymond Davis kills 2 Pakistani citizens in a broad daylight, and the third one is crushed under the wheels of a Land Cruiser, and one of the widow suicides in the broad daylight, 4 murders, and the people, the leaders, are talking to give immunity and the safe passage to the killer. It's very unfortunate, my dears. And again, the great philosopher has told us, उसकी किस्मत में महकूमी व मज़लूमी है. उसकी किस्मत में महकूमी व मज़लूमी है. कौम जो कर न सकी अपनी खुदी से इंसाफ. फितरत अफराद से अगमाज भी कर लेती है. करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को कभी माफ. My dear fellows, we need to improve ourselves. We need to change ourselves. I need to change myself, and you need to change yourself. The change does not come from criticizing people. The change comes from within, and that is the most profound change. उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती. उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती. हो जिसके जवानों का किरदार सूरत फौलाद. शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता. पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा उफ्ताद. My dear fellows, we need to bring this change. And if we start bringing this change, we can become a very successful and honorable nation within few years. Trust me and believe me. These are not my words. These are the words of Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. No doubt that Allah ta'ala does not change the state of the nation unless they change themselves. So we need to change ourselves. This requires time. This requires efforts. This requires patience. And this requires resilience. And believe you me, when we start changing ourselves, the present corrupt and the liar leaders would run away. Just like the Hosni Mubarak has left Egypt. And just like the lion of Tripoli is looking for some safe passage. And
a new generation and a new generation from you of the honest and competent leaders will take over. So let's make a pledge. An average Pakistani speaks about 10 lies a day. An average Pakistani, including myself and yourself, speaks 10 lies a day. Politicians and businessmen, they are exception actually. So let's make a promise to ourselves. We start reducing. I'm not saying that you leave all the lies today. That is very difficult. It's not impossible. But let's make a pledge that we start reducing to speak one lie a week. Or maybe one lie a month. Is it possible? Raise your hands, my dears. Can we reduce speaking one lie a month? Yes? Yes. And if we do that, within a year, we can become a full honest. And if we become honest, you see how the success runs after you. सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का. My dear fellows, if we want to become the leader of the world, we need to speak truth. And we need to spread justice. And we need to keep raising our voice and start the struggle peacefully. Whichever the struggle for the justice, the struggle for the honesty, the struggle for the freedom. Thank you very much. हम किस को इल्ज़ाम देंगे? खुद को नहीं तो और किसको? लीडर्स को, अपने लीडर्स को. तो वो तो सुना ही होगा कि जो लीडर होता है वो कौम का ही अक्स होता है. तो ये सोच लें कि अगर आपके लीडर हैं जो इन्हें आप ब्लेम करना चाहते हैं तो आप खुद क्या हैं? I would want Mr. Shakil Ahmed to express his views to us. Assalamu alaikum, my young fellows. अज़ीज़ ने कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी. बेसिकली मैं इस तारीफ़ के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन तारीफ़ मेरी सिर्फ इतनी है कि मैं एक प्राउड पाकिस्तानी हूँ, एट होम एंड अब्रॉड. मैं कुछ चीज़ें आपके सामने बड़ी प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ, सो यू वुड हैव एन इंस्पिरेशन कि हाउ कैन यू बी पार्ट ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चेंज इन द सोसाइटी. जिस तरह से अज़ीज़ ने कहा कि मतलब मैं अपना सारा प्रोफेशनल कैरियर ऑस्ट्रेलिया से वापस पाकिस्तान आ गया हूँ. मैं वापस इसलिए आया हूँ कि पाकिस्तान से जब मैं गया था तो आई लेफ्ट इट विद अ वेरी हैवी हार्ट. CSS मैंने किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, उसके बाद CSS किया. ख्याल था शायद ब्यूरोक्रेसी में मुल्क की कोई खिदमत है, लेकिन वहाँ पे करप्शन का जो निज़ाम देखा, वहाँ से फिर बहुत मुश्किल है सर्वाइवल. आप अगर अपने वज़रा की बात ना माने और अपने जो आला हाकिम हैं उनकी बात ना माने, तो वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए. उसके बाद ख्याल था कि शायद फ़ौज के लोग हमारे कोई अच्छे लोग हैं, हमारे जर्नैल को ज़्यादा कस्टोडियन है इस कंट्री के. आर्मी में चले गए, वहाँ के हालात देखे, ज़्यादा मायूसी हुई कि सियासतदान एक तरफ, ब्यूरोक्रेट्स एक तरफ और जर्नैल उन सब से एक तरफ. ठीक है. ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग आई क्विट सिविल सर्विसेज एंड पाकिस्तान आर्मी एंड दैट्स इट. चला गया मैं PhD करने के लिए ऑस्ट्रेलिया. ख्याल था भाई हम जैसे लोगों का ये बड़ा अलमिया होता है कि हमारे पास ना कुछ ऐसे असासे बनाए हुए हैं जो गद्दारी के एवज़ हों, जैसे कि हमारे इस वक्त ऐवानों में लोग बैठे हैं जिनमें से 80% या गद्दार हैं या उनकी औलादें हैं. दैट इज़ अ रियल फैक्ट. और उसके बाद जो लोगों ने माल बनाया, पाकिस्तान की कौमी दौलत को लूट कर बनाया, ये इनके बाप की जागीर नहीं है. दिस इज़ योर फंड, दिस इज़ द पब्लिक फंड. व्हेन आई से दिस इज़ योर फंड, I mean the public fund, and you are the public, you are the owner of this trust basically, which is now distrusted to every extent. PhD के लिए जब चले गए ऑस्ट्रेलिया कि चलो कुछ पढ़ लिख के कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे, हलाल की रोज़ी में 4 पैसे आ जाएंगे,
जब ऑस्ट्रेलिया चले गए तो वहाँ पर बस कुछ अच्छी अल्लाह ने कोई इज़्ज़त बख्श दी वहाँ पे। हिजरत में वैसे भी अल्लाह ताला ने बरकत डाली है। आई लेफ्ट टू पाकिस्तान विद अ हैवी हार्ट, और वहाँ पे व्हेन आई वाज डूइंग माय डिग्री आई वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी ऑस्ट्रेलिया, which is one of the largest university of Australia, housing 35,000 students, and it never happened in the history of Australia that a Pakistani or Muslim would have presided such a huge organization. आपके एक पाकिस्तानी भाई को ये फख्र हासिल हुआ कि जाके गोरों को लीड कर सके, अमेरिकन, यूरोपियंस, ब्रिटिश एंड जस्ट नेम इट, फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया। वहाँ पर मुसलमानों के लिए कुछ काम किया, फ़लस्तीन के लिए काम किया, कश्मीर के लिए काम किया, पाकिस्तान के लिए काम किया, और बाकी जो वहाँ पर जो कम्युनिटी होती है मुसलमानों की वेस्टर्न वर्ल्ड में, उनके साथ मिलकर तो अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी। और एक और अल्लाह ने एजाज़ बख्शा कि आपका ये पाकिस्तानी भाई, ये मैं कहने में फ़ख्र महसूस करता हूँ कि एक पाकिस्तानी भाई, कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर द स्टेट पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स फ्राम सिडनी, कि आप हमारे नुमाइंदा बन के पार्लियामेंट में जाएँ। And this has to be going to be the first ever seat in Australian community, especially the state of New South Wales. ये बातें बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी का जितना जौहर है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको एक वाक़या सुनाऊं कि हम पाकिस्तानी वो कौम है, खुदा की कसम, हज़ारों अमेरिकन, हज़ारों यूरोपियंस, हमारों अफ्रीकन एंड एशियंस को देखा है लीड करके, और जहाँ जहाँ मैंने पाकिस्तानी को देखा है, आई कैन स्वेयर अपॉन गॉड कि उनका कोई मैच ही नहीं है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बद से ज़्यादा बदनाम हैं। हमारा जितना भी प्रोजेक्शन है वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर, वी आर ट्रीटेड आइदर एज बैगर्स और द टेररिस्ट। वी हैव गॉट नो अदर ब्रांड, एंड दिस इज द ब्लडी ब्रांड वी हैव डेवलप्ड फॉर आवरसेल्व्स। जब माँ बहनों को, बेटियों को बेचा जाएगा डॉलर के बस, तो कौन सा टाइटल मिलेगा? क्या आपको सुरखाब के पर लगाए जाएंगे? आपकी जमीन के ऊपर पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, और इस्लाम के नाम पर ही इंशाल्लाह कायम रहेगा, वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पहले भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और आज भी अल्लाह की मेहरबानी से इस कौम के इतना जज्बा है कि इस कौम को बचाने के लिए, इस मुल्क को नज़रियाती बुनियादों पर कायम रखने के लिए अपना सरधड़ सब लड़ने को तैयार हैं। और वो वक्त अब दूर नहीं है जब ये पाकिस्तानी लोग एक फ्रस्ट्रेशन से गुजर के एक इंतहाई क्लाइमेक्स की तरफ नाउ वी आर लीडिंग टू। हमारे पास अल्लाह ने इतने बड़े वसाइल दिए हैं, पाकिस्तान को अल्लाह ने दुनिया की 10 मोस्ट रिसोर्सफुल नेशंस में शामिल किया है, लेकिन हमारे नमक हराम गद्दार वो शेरवानी में है या वर्दी में है, उन्होंने इस मुल्क को दुनिया की 10 जलील तीन कौमों में शामिल किया है। इसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं है। मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ मुख्तलिफ वहाँ से लिख कर, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर, डेली मिरर बरतानिया का, एंड ऑस्ट्रेलिया का, एंड पाकिस्तान में कुछ आर्टिकल्स मेरे छपते हैं नेशन फ्रंटियर पोस्ट के अंदर। मैं इसमें खुलकर लिखता हूँ कि वी आर अवर एनिमीज, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, हम खुद हैं। हमने जितनी गद्दारी इस मुल्क के साथ की, खुदा की कसम इतनी वफादारी करते तो पाकिस्तान आज अमेरिका की जगह खड़ा होता। पाकिस्तान वुड हैव लीडिंग द वर्ल्ड, द इंटरनेशनल कम्युनिटी, 10 मोस्ट रिसोर्सफुल नेशन और 10 दुनिया की जलील तरीन कौमें। मुझसे एक अंग्रेज कहता है, शिकील डोंट टॉक अबाउट पाकिस्तान। मैं कहा व्हाई शुडंट आई टॉक अबाउट पाकिस्तान? कि यू पीपल आर ब्लडी बैगर्स, यू पीपल आर ब्लडी टेररिस्ट। मैंने कहा हु? आई वाज साइलेंट ऑन इट बिकॉज ही वाज राइट। देखिए, जो कुछ भी मीडिया बताता है, एक मीडिया ने इस कौम में जो गंद डाला है, रहे नाम अल्लाह का, ऐसा यहाँ काम किया है जो पाकिस्तान बहुत से अच्छे काम भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एम्पलीफाई किया है हमारी डिस्ग्रेस को भी, डिसरेपुटेशन को भी। सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज कास्टर को बड़ी जोर से न्यूज आती है कि जनाब मैंने ये न्यूज देनी है, आई एम ब्रेकिंग दिस न्यूज फ्रॉम दिस चैनल। हमने रेस चैनल बनाया किस मकसद के लिए? हमारा जो पर्पस है, टू इवॉल्व पैट्रियोटिक लीडरशिप फ्रॉम द कॉमन मैन टू रिप्लेस करप्ट रूलर्स फॉर रीबिल्डिंग पाकिस्तान एंड इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था और इस्लाम के नाम पर ही इंशाल्लाह कायम रहे। मुझसे वो कहता है गोरा मीडिया का ऑस्ट्रेलियन, well, Mr. Shakil, you have titled Ray channel in the name of your slogan is peace, justice and humanity. But how come you are serving
मैं उर्दू में बताता हूँ आपको, आप कहते हैं पीस, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं आपका चैनल, लेकिन आपका तो सिर्फ इसमें पाकिस्तानी है, मुसलमान है, दाढ़ी वाले हैं, मस्जिदों वाले हैं, ये क्या है? ये तो इसमें तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई है नहीं। जो दुख है वो आप इनका दिखाते हैं। मैंने कहा आप मुझे बताएं कहाँ कौन से गोरे के पास कश्मीर है, कौन से गोशे के पास, कौन से गोरे इस गैर इस्लामिक कंट्री में लाल मस्जिद है जिसपे तबाही हुई, जिसपे बमबारी की गई, कौन सा ऐसा जो है ना फ़लस्तीन का इलाका है जो वेस्टर्न वर्ल्ड के है, जहाँ पर मसाइल होंगे उनकी तस्वीर कशी भी वहीं से होगी। आप हमें बता दें कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर कितने लोग वहाँ पर भूखे मरते हैं, कितने लोगों की असमतें लुटती हैं, कितने लोग जो है इनजस्टिस का सफ़र करते हैं। आप मुझे बताएं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आई विल प्रोमोट यू ऑन माई चैनल, क्योंकि पीस, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी हमने नाम जरूर रखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सफ़र भी हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो मुसीबत का जो एंड टेकन है वो भी हम ही हैं। आप हमारे साथ काम कहते हैं, हाउ कैन वी कोऑपरेट विद यू? मैंने कहा, तो कोऑपरेशन यू कैन रेंडर अस, नोबडी एल्स कैन डू इट। आप सिर्फ एक काम करें, सिर्फ ये कि आपकी जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है, आप अपनी वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बता दें, ख्वाह वो अमेरिका हो, यूरोप हो, वट एवर द कंट्री इट कम्स फ्रॉम, कि आप अपनी हुकूमतों के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसकी बुनियाद पे इम्तियाजी पॉलिसीज़ ना बनाएं। इम्तियाजी पॉलिसी से मुराद ये है कि ये पॉलिसी पाकिस्तान के लिए है, ये इराक़ के लिए है, और ये आपके लिए अफगानिस्तान के लिए है। एट द एंड ऑफ द डे जितने भी दुनिया में जंगें हुई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मुसलमानों के कत्लेआम हुए, एट द एंड ऑफ द डे हु वाज सफरिंग, वी वर सफरिंग। 1400 मिलियन इस वक्त जो है आपके अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमान वर्ल्ड वाइड हैं, उसके अगेंस्ट आपके 14 मिलियन सिर्फ यहूद हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कौन कहाँ खड़ा है, उनकी क्या हैसियत है, हमारी क्या औकात है। हम जिल्लत की तबाही से रोज़ाना एक नया रकम करते हैं बाब, और वो दैट्स नॉट गोइंग टू एंड एनीवेयर। और वहाँ पे मैंने कहा कि दरमियाना रास्ता कोई नहीं है, आपके पास दो रास्ते हैं, वेदर आई कन्विंस यू और यू कन्विंस मी, या आप मेरी बात को फॉलो कर लें या मैं आपकी बात को फॉलो कर दूँ। एट द एंड ऑफ द डे यहूदी ये कहने पर मजबूर हो गया कि मुसलमानों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसमें यहूद और इसराइली रियासत बहुत हद तक शामिल है उसके अंदर। So that is the demonstration you have to demonstrate at every scale, in every perception, in any community you pass through. सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, खुदा की कसम से मैं कहकर कहता हूँ, रेमंड डेविस का मैं आपको ज़ेली सा वाक़या बताऊँ। 2009 में एक रिपोर्ट मैंने भेजी मजीद निज़ामी साहब को, डॉक्टर शीरी मज़ारी को, तलत हुसैन आज टीवी वाले को और जावेद चौधरी को। ये सब बड़े बड़े मेन लोग हैं, आपको जानते होंगे मीडिया को। मैंने कहा दिस इज़ द हेल इज़ गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान। तो इन्होंने कहा जनाब आप 16,000 किलोमीटर बैठे हैं गोरियों के साथ, आप डराते हैं हमें, यहाँ तो सब मौज मस्ती है। मैंने कहा अच्छा, डोंट टेक माई वर्ड्स, टेक योर टाइम एंड सी बाय योर ओन आइज। 2 हफ्ते के बाद मैंने एक आर्टिकल लिखा, अमेरिकन मिलिट्री बेस इन इस्लामाबाद। वो नेशन वालों ने तो नहीं छापा, वो फ्रंटियर पोस्ट वाले, वो हमारे गैरतमंद भाई है, वो उसने छाप दिया, उसने कहा बड़ा छापेगा, वो छाप दिया आफरीदी साहब ने, वो पब्लिश हो गया। वो अल्लाह की मेहरबानी से उसमें पूरे आर्टिकल में मैंने कहीं लिखा था कि हमारी, ये 2009 की बात कर रहा हूँ, तकरीबन सवा साल हो गया इस बात, सवा साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल हो गया, सॉरी 1.5 साल। उसमें मैंने ये लिखा कि हमारी जो रॉ मोशाद और आपकी जो दूसरी एजेंसी हैं यहूद नसारा की, वो इतना डीप पेनिट्रेट कर गई हैं कि ये GHQ में घुस के मारेंगे, जर्नलों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली आफ्टर दैट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड, GHQ वाज अंडर अटैक। लोगों ने मुझे ख़त लिखे, ईमेल किए, फ़ोन किए कि शकील साहब आपको पता था GHQ में हमला होने वाला है, फिर तो आपको यही पता होगा हमला किसने कराया। मैंने कहा अकल के अंधो, ठीक है मैं यहाँ पे सेंसिटिव पोजीशंस पे रहा हूँ, यहाँ से लड़ मर के मैं चला भी गया हूँ, लेकिन अब तो मैं काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया बैठा हूँ, लेकिन इट डजंट मैटर वेयर योर बॉडी लिव्स, व्हाट मैटर्स इज वेयर योर हार्ट बीट्स। माई हार्ट वॉज बीटिंग इन पाकिस्तान 1.5 साल पहले। आई इंडिकेटेड, आई वॉन्ट दीज टॉप मीडिया पीपल, टॉप मीडिया पीपल को मैंने वॉर्न किया, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस कंट्री, दिस इज माई कंट्री बेसिकली। अब वही हुआ, रेमंड डेविस, वो बिल जितने भी खुले थे वो सारे अंडरग्राउंड कार्रवाई अब हो गए। अब वो सड़क पे घूमते फिरते मांगते बचा लें आप जाके। कितनी हमारी एजेंसियां, कितने हमारे जो है ना वो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, किसमें दम नहीं है, पकड़ते इनका दम पड़ता है, अपना कोई पाकिस्तानी बात करे उठा के गायब कर दो उसको, नजर ना आए, 600-700 की लिस्ट में शामिल कर दो उसको। बहादुरी ये नहीं है अपने लोगों पे बम बरसाना, अपने लोगों पे मारामारी करना। बहादुरी ये है जो अपने दोस्त, अपने मुल्क के दुश्मन है, उनको आइडेंटिफाई, उनको आइसोलेट एंड एलिमिनेट करें, ये बहादुरी है। टू कट द बिजनेस शॉर्ट, आई वांट टू कम टू द कंक्लूजन बेसिकली
हमारा सबसे बड़ा अलमिया कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है, लीडरशिप। अल्लाह ने हमें वो वसाइल दिए हैं, एक हमारी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हमारे वसाइल हैं बलूचिस्तान में पड़े हुए हैं। इतने वसाइल अल्लाह ने दिए कि अगर हम एक कान भी अगर बेच दें तो एक हमारा वो है पूरा पाकिस्तान का वो उतर जाता है कर्जा, चेंज है कि आप पूरी ट्रिलियंस ऑफ 500 बिलियन डॉलर का जो है आप यू कांट इमेजिन कि अल्लाह ने कितना रिसोर्स दिया है। लेकिन हमने किस हाथ तक, वो भी उन्होंने एक ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन कंसोर्शियम को दे दिया कि ले जाओ निकाल के, तुम्हारे बाप की जागीर है, हम भी खाएंगे और तुम भी खाओ, ठीक है। ये तो पाकिस्तानी है, भूखे मरते हैं, इनको तो आदत ही है, ये हमेशा से खामोश है और अभी उठने वाले नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ अलमिया ये है। मुझे एक बात जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर चुभती थी, मैं शकील अहमद एक आम आदमी हूँ, ना मेरा बाप जागीरदार है, ना हमारा बाप जो है ना वो जर्नैल है, ना मेरा बाप कोई पूरा लूट मार करने वाला आदमी है। आम आदमी है, अपनी मेहनत से अपनी रिज़्क़ कमाने के लिए कमा के अपना गुजारा करते हैं। जब मुझ जैसा आदमी वहाँ पे जाकर हज़ारों गोरों को जाके लीड कर सकता है, यूरोपियन सोसाइटी में जाके उनको हेड कर सकता है, उनकी पार्लियामेंट की नॉमिनेशन ले सकता है, तो क्या मेरे सर पे सींग लगे हैं? क्या आपके अंदर वो कोई सलाहियत नहीं है? आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है? तो किस लिए डिग्रियां कर रहे हो? फाड़ो इन डिग्रियों को, जाके कोई दुकानदारी करो। अगर तालीम से अगर हमें ये चीजें शऊर नहीं आता तो कोई फायदा नहीं है एजुकेशन का। बाहर के अंदर सबसे अच्छी जो बात मुझे लगती है वो ये कि दे डू नॉट प्रोड्यूस द टेक्नोक्रेट्स, दे ऑल्सो एड अप द फ्लेवर ऑफ लीडरशिप। उन्होंने वहाँ से जमात 5 से उन्होंने प्राइमरी से शुरू कर दी जाती है कि इनमें लीडरशिप ग्रूम की जाए, वहाँ पे पार्लियामेंट बनाई जाती है, उनमें सेक्रेटरी, उनमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर की जिम्मेदारियाँ दी जाती है ताकि उनमें एहसास जिम्मेदारी हो और उनको पता लगे कि बाद में अमूर रियासत किस तरह चलाए जाते हैं। फिर वो हमारी तरह भेड़ बकरियां नहीं पैदा करते, हमारी तरह डिग्रियां लेके फिरने पे मजबूर नहीं हो जाते। वो जब गोरा कहते हैं ना, एक गोरा पूरी कौम पे भारी है, रेमंड डेविस एक ही है। 10 लाख इन्होंने मुसलमान मार दिए इराक और अफगानिस्तान में, वो सब का खून उसके आगे हीच है, एक रेमंड डेविस के आगे। जो रियल क्रिमिनल है, जो वेना कन्वेंशन क्लियरली कहता है कि दिस इम्यूनिटी इज अवेलेबल ओनली टू डिप्लोमेटिक्स व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर डिप्लोमेटिक ड्यूटीज। कोई डिप्लोमेट अगर इवन अपने पर्सनल एक्ट के तौर पे क्राइम करता है, ही इज नॉट इम्यून। वो तो नमक हराम डिप्लोमेट ही नहीं है, वो तो है ब्लैक वाटर का एजेंट। आप वो किस तरह की, ये तो आपकी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू फाइट द केस इन अ मैनर कि हमारे दुश्मन कहीं भाग कर ना जाने पाए। और वो सफ़ों में हद तक घुस चुके हैं कि हमारे लिए अब काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि पिंडी वालों की बारी कब आती है, मुल्तान वालों की बारी कब आती है। 1200 एजेंट नाउ हैव बीन स्प्रेड आउट फ्रॉम खैबर टू कराची एंड दे आर जस्ट टारगेटिंग दिस प्लेस और देयर। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ टर्न ओनली। सारी बातें कहने का मतलब ये है कि आप खुदारा अपना आपको पहचाने, अपने जौहर को पहचाने, अपनी पहचाने कि अल्लाह ताला ने आपको क्या कौम पैदा किया है। मैं छोटी सी मिसाल दूं, जब माओ ज़ेतुंग का इनकलाब आया चाइना में, तो वो माओ ज़ेतुंग वाज जस्ट पासिंग बाय द रैली, तो वो जस्ट ही वाज गिविंग अ लिटिल टच टू द हैंड्स ऑफ द पब्लिक रैलिंग अराउंड हिम ना। तो एक शख्स के पास वो जाकर माओ ज़ेतुंग रुक गए, जाकर ना बड़ी देर तक उससे गर्मजोशी से मुसाफा किया। तो उस शख्स ने पूछा, माओ ज़ेतुंग मैं गुस्ताखी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पूरी कौम आप पे जान निसार करने को तैयार है और आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं, इसकी वजह? कहते जेंटलमैन, जिस कौम को तुम बिलोंग करते हो वो अंदाज़ा नहीं है कितनी अजीम कौम है। एंड ही वॉज अ पाकिस्तानी, ही वॉज अ पाकिस्तानी। कौन सा पाकिस्तानी आपको चाहिए? कौन सा आपको ब्रांड लगा हुआ है पाकिस्तान का? किस किस्म की ब्रांडिंग चाहिए पाकिस्तान को? क्या उसका कोई स्पेशल मेकअप कर दिया जाए? क्या इसको डेकोरेशन दे दी जाए? इट इज ऑल फ्रॉम हियर एंड देन फ्रॉम हियर इट गोज टुगेदर। अब भी आपके अंदर एहसास करने के लिए, अपनी वक़्त जानने के लिए, अपने हकूक़ को समझने के लिए ना सिर्फ एहसास डेवलप करना है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक प्रॉपर तरीके से चलना है। इसके लिए हमने अल्लाह की मेहरबानी से ये चैनल कोई नहीं है, ये एक मिशन है टू रेस्क्यू पाकिस्तान एट टाइम ऑफ एक्सट्रीम क्राइसिस। मीडिया का सहारा हमने इसलिए लिया है कि मीडिया के जरिए बहुत सारी चीज़ें बहुत दूर तक बातें चली जाती हैं, बहुत तेज़ी से आपका मैसेज कन्वे हो जाता है। तो इस मीडिया को हमने नेटवर्क के तौर पे इस्तेमाल किया है कि अच्छे इदारे और अच्छे अफराद नेटवर्क हों, ताकि हमारा जो पाकिस्तान रेस्क्यू मिशन का जो पर्पज़ है टू इवॉल्व द पैट्रियोटिक लीडरशिप फ्रॉम द कॉमन मैन। आप में से ही हो सकता है कल कोई वज़ीर ख़ारजा हो, कल कोई वज़ीर ख़जाना हो, कल कोई वज़ीर बहबूद हो, कल कोई वज़ीर आज़म हो। क्या इन सर पर सींग लगे जिनकी डिग्रियाँ भी जाली हैं?
इन सब की जिम्मेदारी हम पर आती है। खुदारा अपनी एहसास को समझें और अब एक प्लेटफॉर्म पर नेटवर्क हो जाए, अपने इस एहसास तस्करे को कह दें, बता दें कि वी आर सफिशिएंट एनफ टू टेक द कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और हमने रेस चैनल के जरिए एक पूरा जो एक माहौल पैदा किया है, जिस तरह से नेटवर्किंग हम कर रहे हैं अच्छे इदारों और अफराद की, आप उस मिशन में शामिल हो हमारे साथ पाकिस्तान को बचाने में। या सिर्फ एक तकरीर सुनी, तालियां बजाई, देन गो होम, ये आपका मकसद है यहाँ आने का? बताइए मुझे। आप चाहते हैं प्रैक्टिकली काम करना? आप चाहते हैं कि शकील अहमद यहाँ से 16,000 किलोमीटर अपना सब कुछ छोड़ के, इज्जत, पैसा, दौलत, बीवी बच्चे छोड़ के यहाँ पर आ जाए सिर्फ इसलिए? नथिंग। मैं समझता हूँ ज़मीन का जितना मुझ पर कर्ज है मैं उतार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ हकीर सी कि शायद मेरी जो है ना वो आरजू पूरी हो जाए। इसीलिए आप भी अपना जौहर पहचानें और आगे आएँ और इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए अपने आप को तैयार करें। सोशली, पोलिटिकली, इकोनॉमिक एंड रिलीजियसली यू बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन वेरी सून। इन्होंने कहा कुछ साल में, मैंने 3 साल का टारगेट बताया, सिर्फ 3 इयर्स में हमारे पास एक टेक्नोक्रेट्स का पूरा हम एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं लीगल। आप जाके देखेंगे रेस चैनल पे जाके, यू वुड फाइंड इट वेरी क्लियरली। हमने बड़ा एलेबोरेट किस्म का एक सिस्टम खड़ा कर रहे हैं जहाँ पे ना सिर्फ हम टेक्नोक्रेट्स प्रोड्यूस करेंगे, इंशाल्लाह कर रहे हैं, पूरी पॉलिसी जो पॉलिसी देंगे पूरी कौम को, अच्छी लीडर, आप में ही से अच्छे लीडर आएंगे जो ये इतनी खूबसूरत बातें यहाँ भाई करके गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें सिर्फ कोई अहलियत नहीं है, कुछ जज्बा था तो ज़बान पर आया, एंड ही कैन बी एक्चुअली ट्रांसलेटेड, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू सम प्रैक्टिकल एफर्ट टू सेव दिस नेशन। ऐसा है कि नहीं है? जितने लोगों ने तकरीरें की यहाँ सिर्फ दिल जीतने के लिए, तालियों के लिए की, बताइए आप मुझे। यू हैव गॉट अ प्रैक्टिकल एम्बिशन एंड यू हैव टू गेट इट थ्रू दिस। तो मैं आपसे आखिर में सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा इस पाकिस्तान को बहुत मुश्किलों से, कुर्बानियों से मिला है। अगर हम ये आज़ादी खो देते हैं तो पहले हम हिंदू के ग़ुलाम थे और हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम भी होंगे, जिनकी बॉर्डर पे फ़ौजें खड़ी हैं नेटो की, वेस्टर्न बॉर्डर पे और ईस्टर्न बॉर्डर पे आपकी जो है ना वो पुराने दुश्मन खड़े हुए हैं। अपनी मदद आपने खुद करनी है। हमें अपने अंदर से गद्दारी निकाल के अपने ज़ाती सियासी मफादात और जो हमारी गेंस हैं उसको सेक्रीफाइस जब तक आप नहीं करेंगे। गोरे की एक और खूबसूरत बात बताऊं, बहुत सारी बातों पे वो बड़े नमक हराम है, लेकिन मामलात में उनकी बातें बहुत अच्छी हैं कि वो जब तोलते हैं तो पूरा तोलते हैं, बात करते हैं तो ईमान की करते हैं, जब किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का हाथ नहीं मारते। ये चीज़ें इस्लाम की हैं। उमर फारूक का एक सिस्टम उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया सोशल वेलफेयर का, वो उसको क्लेम करते हैं कि बड़ा वेलफेयर सिस्टम है, ये हज़रत उमर फारूक ने इंट्रोड्यूस किया था ये सिस्टम। कौन कौन सा लिटरेचर है जो हमारे पास नहीं था, लेकिन वो हैव लॉस्ट इट। अब हमने पकड़ लिया है बेंजो, अब हमने जनाब बड़े बड़े गाने बजाने हैं, बड़ा बड़ा ढोल कूटना है, हम समझते हैं कि यही हमारी मीरास है। दिस इज नॉट। जब कौमें तबाह हो रही होती हैं तो वो इस तरफ जाती हैं, नाच गाने की तरफ, ऐशो इशरत की तरफ। आज भी अगर आप चीज़ों में पड़ गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, खुदा की कसम, कल आरफा सिद्दीकी किसी की बेटी थी, कल हम में से किसी की बहनों बेटी की बारी आ जाएगी। क्या हम इतने बेगैरत हो चुके होंगे जब तक कि हम अपनी इज्जत के खिलाफ उठने वाले किसी हाथ को नहीं रोक सकेंगे? उसकी तैयारी हमने आज करनी है। करेंगे सारे लोग? गिव मी अ साउंड वॉइस, स्ट्रॉन्ग वॉइस। पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। जब तक खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुल्क हमारा है, मैं तो नहीं दूंगी अपना घर किसी को। वी आर 79% ऑफ टोटल पॉपुलेशन as youth। कदम उठाएं, क्यों डरते हैं? We have with us the results. I would call again the judges, Mr. Haroon Toor and Professor Arif Khatak, to hand over these certificates. थर्ड से शुरू करें, राहीला आबिद। सेकंड प्राइज goes to Ghazanfar Adnan, and first prize goes to Sohail Bukhari. I would request Dr. Jameel Khan to give us some conclusion. Bismillahirrahmanirrahim. Respected chief guest, Wahad Saab, respected Shakil Ahmad, Director of the channel, respected faculty members and students, Assalamu alaikum and good evening. All of the speakers, they did not leave any word for me, but I can add maybe few of my views. That one thing that has been developed in the Pakistani people, I'm including that,
that the negative thinking, that whatever we get, we say we cannot do that. Like if you see the examples, some of the examples that, like LUMS is one of the best university in this country, and that has developed by only 4 people, started in 1982 in a small house. And now see that can compete with any university in the world. Same with the GIK Institute, that was started in desert, and now you see that is also, that was number 9 in the Asian Pacific region. And there are many other examples as well. So we can do a lot of things, but this negative thinking, that should be stopped. And we should work very hard. Hard work is very important. As it did by our Prophet as well, it's did by our leaders like Qaid-e-Azam. He was a hard-working person. Allama Iqbal, and then the recent examples of Dr. A.Q. Khan. He used to work for 18 hours while developing the nuclear technology. Samad Mubarak, and there are many, many other examples. And then another thing, that is ownership feeling. We don't own Pakistan. The nationalism, Pakistani nationalism, that is fortunately now emerging. We are in a chaotic situation, and in this chaotic situation, one thing is very positive, that is Pakistani nationalism, that is emerging. Now we all, Pathan, Punjabi, Balochi, Sindhi, and any Pakistani, they now talk about Pakistaniyat. So this is important, that nationalism, we should be nationalist, but we should not be nationalist for negative thinking. We should have positive thinking. We should develop, do something. So this ownership is very important. We don't own. Anywhere we work, we don't own. If we are studying, we don't own our university. If I'm working somewhere, I don't own my organization. So ownership is very, very important. And at the end, I would say something like, there are many things that we cannot do. There are something that we can do. Let's start doing something. So we should not wait for tomorrow. We should start right from today, doing something. Thank you very much.